Hello students, so welcome to our excellent tutorial. Your exam is over. I think you have done extremely well in the term 1 examination, especially in the mathematics paper. If you are not satisfied with the term 1 exam, don't worry. You have the term 2 exam and from today itself you have to prepare. Okay? So I am here today especially for discussing the term 1 exam paper, mathematics paper. So let's start. The paper actually is not tough and not an easy paper. So इतना टफ भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं था. So इसीलिए I think all of you have done well. So let's start with the question number 1. The question number 1, the exponent of 5 in the prime factorization of 3750. So number 1, 3750 इसका exponent of 5. So what will be exponent? So 3750, if you prime factorize this number, divide 2, so it should be 75. So 5 5 then 5 then 5 so it is, you see there are 4 5s, so 5 to the power 4, 2 into 5 to the power 4 into 3. So option is B. So option B will be the correct. Next, number 2. One minute. I have a request to all of you. Before watching this video, please download the question paper. The link will be given in the description box. Okay? Okay, fine. So question number 2. The graph of a polynomial px cut the x-axis at 3 points. Cut the x-axis at 3 points and touches it at 2 other points. The number of zeros of px. So 3 points में cut कर रहा है 1 2 3 and 2 points में ऐसे touch कर रहा है. तो definitely the number of zeros will be 5. तो option D. Option D will be the correct option for question number 2. Then question number 3. The values of x and y satisfying the two equations. You are given two equations. 32x plus 33y is equal to 34. 33x plus 32y is equal to 31. So you are given these two equations and you have to find the values of x and y. Now for this type of questions you have to proceed with options. Okay, आपको ना ऑप्शन से ही पता चलता है कि ये कौन सा वैल्यू होगा. तो अगर आप सही तरीके से मतलब आप एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोसीड विथ ऑप्शंस. ओके, सो यू सी the first option is minus 1 comma 2. Minus 1 comma 2. So x का वैल्यू -1 and y का वैल्यू 2. So if you put x equal to -1, so it will be -32 in the equation 1. Suppose it is 2. If you put -1 in place of x, it will be
32 minus 1 minus 32, and 32 into 2 it will be what? 64. Oh sorry, it will be 66. So 66 minus 32, definitely 34. Yes, it satisfies equation 1. And if you go for the equation 2, it will minus 33 plus it is 32 into 2. In place of y, put 2. So 32 into 2, it will be what? 64. And 64 minus 33, it will be 31. So clearly, minus 1 comma 2 satisfy both the equations. So that is why it will be the correct options. So option A will be the correct option for question number 3. So question number 4, मार्कर सेट कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a 3 root 3, b 0, and c 3, k are the 3 vertices of an equilateral triangle. Okay, equilateral triangle, that means all sides are equal. Suppose a, this is 3, root 3, and b is the 0, and c is the what? 3, k. You have to find the value of k. Since it is an equilateral triangle, we know that all sides are equal. So definitely AB is equal to BC. So AB is equal to BC. Now apply the distance formula. So if you apply the distance formula, this is x1 y1, this is x2 y2. So distance formula is what? Root over x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So this is x1, this is x2, this is y1, this is y2. So 3 minus 0 whole square plus root 3 minus 0 whole square, and इसके ऊपर this root over sign and square root of what? BC. So 3 minus 0 whole square plus k minus 0 whole square. You can also write AC equal to AB, but since it is given 0, 0, so I prefer for this AB equal to BC. So this is 3 square, this is root 3 square, this is 3 square, this is k square. Now since both sides of the equations you have the root over sign, you can remove this sign by squaring both sides. So you will get what? 3 square plus 3, and this is 3 square plus k square. Okay, I erase this triangle. So what will you get? This is 9 plus 3, this is 9 plus 3, and this one 9 plus k square, 9 plus k square. So 9, 9, you may cancel out, and k square equal to 3. So ultimately k equal to plus minus root 3. Yes. So minus root 3 is given. So option C will be correct. So option C will be the correct option for question number 4. Now question number 5. Okay, I think you have noted down. Okay, now question number 5. So इसमें क्या है? इस फिगर में एक बार गिवन है फिगर, इस फिगर में क्या दिया हुआ है? DE. DE is parallel to BC. Okay. और क्या दिया हुआ है? ADE is equal to 2 centimeter and BD equal to 3 centimeter. Okay, it is a given information.
ओके, सो आई एम ड्रॉइंग द फिगर। ओके, ये फिगर है, यहां पे ए बी सी, ओके, ये डी ई, यहां पर ए डी 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, एंड बी डी 3 सेंटीमीटर। ओके, यस, नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट रेशियो ऑफ द ट्रायंगल्स ABC and ABE. Okay, so ABC, this is the larger triangle is ABC, and ADE, this is the smaller triangle is ADE. तो कैसे निकालते हैं इसको? अच्छा, since these two lines DE and BC are parallel, ये दो लाइन पैरेलल है, तो साफ साफ ये क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। Why? Corresponding angles, and this is common angle. So by angle property, ये तो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। So by angle property, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AD क्या है? ADE एंड ट्राइंगल ABC, ये दोनों सिमिलर है। ओके, तो सिमिलर है तो क्या प्रॉपर्टी है? इसका जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? AB स्क्वायर बाई AD स्क्वायर, ये होता है। ये तो हमें पता है, तो हमको चाहिए अब ये AB का वैल्यू और AD का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? AD इज गिवन, इट इज 2 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस AB, ये AB निकालना है। तो साफ साफ बात है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ दो, क्या मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। तो साफ साफ बात है, AB इज 5 और AD तो गिवन है 2, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा? इसका वैल्यू मिलेगा 5 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, दैट मींस 25 बाय 4। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो फटाफट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, cot थीटा इज गिवन, cot थीटा इक्वल टू 1/√3, ये गिवन है। आपको निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर, सॉरी, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये निकालना है आपको। कितना वैल्यू आएगा? ओके, तो देखते हैं। अच्छा, ये cot स्क्वायर थीटा यहां से देखिए, यहां से cot स्क्वायर कितना आएगा? cot स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। इज इट? ओके, नाउ इस cot स्क्वायर से, अच्छा उसके बाद देखिए, cot थीटा दिया हुआ है 1/√3, तो यहां से tan थीटा क्या आएगा? यहां से tan थीटा आएगा, इसको ऑल्टर कर दो, √3 ऊपर कर दो, मतलब √3 आएगा। फिर tan स्क्वायर कितना आएगा? इसको स्क्वायर कर दो, 3 आएगा। तो एक cot स्क्वायर थीटा मिल गया और tan स्क्वायर थीटा मिल गया। हमें निकालना है क्या? sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। देखते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा का मतलब हम जानते हैं क्या? दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं।
sec square theta equal to 1 plus tan square theta, cosec square equal to 1 plus cot square theta. अच्छा, तो 1 plus tan square theta, tan का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये मिल गया हमें. अच्छा, then 1 plus 1 by 3 ये भी है, तो ये 4 है into ये क्या होगा, ये कितना है 16. ओके, देखते हैं कितना मिलता है. यहां पर 3 plus 1 4 by 3 आएगा ये, तो 4 4 जा 16, तो यहां पर आएगा 5. अगर मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 5 1 by 3. तो ऑप्शन में है यस, ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो इतना भी टफ नहीं है. आई थिंक आप लोगों को हो गया ये. ओके, नाउ नंबर 7. The area of a quadrant of a circle where the circumference of circle is 176 meter. Okay, circumference दिया हुआ है. अच्छा, circumference दिया हुआ है c equal to 176 meter. तो आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ओके, तो यहां से हम निकालते हैं रेडियस. तो ये 2 पाई r, हम जानते हैं कि सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई r होता है, तो ये 176. अच्छा, तो पाई r कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे. ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे 176 by 2, तो ये कितना मिलेगा, या आपको मिलेगा 2 से करेंगे तो ये 8, तो फिर और ये 8. ओके, 8. ओके, तो r का वैल्यू आएगा 88 by पाई, और पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू 22 by 7. अच्छा, इसको नीचे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं. सो ये 88 by 22 by 7 ये आएगा. इस 7 को ऊपर चला जाएगा, तो 7 into 88 by 22. ओके, तो ये 4 से कैंसिल करो. ओके, तो ये 28. अच्छा, तो 7 4 जा 28. ओके, ये मिल गया हमें रेडियस. तो रेडियस मिल गया है, तो अब निकालना है हमें क्या, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल. क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ ए सर्कल. हाँ, मतलब पूरे सर्कल का, अगर पूरे सर्कल को ऐसे 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट को बोलेंगे हम क्वाड्रेंट. तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या आएगा. तो ये 1/4 होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट है 1/4, और उसका एरिया कितना, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर. कैलकुलेट दिस. ये पाई का वैल्यू 22 by 7 और r का वैल्यू 28. सो 28 r स्क्वायर है, तो 28 दो बार मल्टीप्लाई, तो ये 4 7 जा 28 है. अब देख रहे हैं तो ये सब कैंसिल, तो ये 22 into 88. सो 22 into 88 करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 56 है ना. 28 into 2 56 होता है, तो ये 6, ये हाँ 616 है क्या, यस, ऑप्शन सी. तो 616 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ये होगा. ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है. आप लोग एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं भी कर सकते हैं. ओके, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं ये कर रहा हूं. अगर आप लोग फटाफट करते हैं तो बेहतर होगा एग्जाम में. इतना फॉर्मेलिटी मेंटेन करना जरूरत नहीं है.
लेकिन मैं यहां पर दिखा रहा हूं कैसे ये आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर दिया हुआ है, फॉर एन इवेंट ई पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3। ओके, सो यू आर गिवन फॉर एनी इवेंट पीई मतलब उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस पीई बार, इसका मतलब ये होने का प्रोबेबिलिटी, ये नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। ये पी आर बार का मतलब ये नहीं होने का, ये होने का। ओके, सो यहां पर क्या दिया हुआ है? इक्वल टू एक्स, ये एक्स दिया हुआ है। अच्छा, तो यहां से क्या होगा, एक काम करते हैं, इसको इधर रखते हैं और इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अच्छा, इसको नंबर 1 दे दो, मतलब कुछ मिल गया, एक रिलेशन मिल गया। और एक बात हम तो जानते ही हैं, क्या जानते हैं? ये जो पी बार है मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, इसको निकालते कैसे हैं? 1 से होने का प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, जो होने का प्रोबेबिलिटी है 1 से माइनस कर दो। तो देखो ये पीई बार मतलब x माइनस पीई, और पीई बार यहां से ये भी आ गया। तो इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, यू सी द लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड बोथ आर सेम। सो अगर कुछ इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड सेम होता है, तो डेफिनेटली राइट साइड भी सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं कि x माइनस पीई इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। तो देखो ये माइनस पीई, यहां पर माइनस पी है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो रह गया कौन? x का वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 1 रह गया है तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? x क्यूब माइनस 3। तो x का वैल्यू 1 है, तो x क्यूब माइनस 3 क्या होगा? 1 क्यूब माइनस 3, मतलब 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 है क्या? यस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक ये समझ में आ गया है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, इतना भी नहीं। ओके, यहां पर क्या दिया हुआ है? What is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes? तो greatest possible speed पूछ रहा है, तो डेफिनेटली ये किसका है? HCF या फिर LCM का मैच है? ये HCF का मैच है ना? ये HCF का प्रॉब्लम है। तो 95 और क्या दिया हुआ है? 171। तो 95 और 171 दिया हुआ है, इसका HCF निकालो। तो HCF निकालने, यस 95 है 171। ओके, तो इसका LCM सॉरी HCF निकालने का आसान तरीका क्या है? डिवाइड करो 171, तो यहां तो डेफिनेटली 1 ही होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 9 जा 18 बड़ा हो जाएगा, तो ये 95 माइनस कर दो, तो कितना होगा? ये 6 और ये क्या होगा? ये 7। ओके, तो फिर ये तो रिमाइंडर हो गया, तो इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करो 95 को, कितना दोगे? 2 तो नहीं जाएगा, क्योंकि 2 7 जा 14 बड़ा हो जाएगा, तो 1 दे दो 76। फिर माइनस करो, कितना होगा? ये 15 है, तो 9 और ये 1। फिर इस 19 से इस 76 को डिवाइड करो, तो 19 से इफ यू डिवाइड 76 बाय 19, तो क्या दोगे? 4। यस 4 डेफिनेटली। तो ये बन गया हमारा रिमाइंडर 0। तो जब तक 0 नहीं है तब तक करते रहो ऐसे, और जो लास्ट में 0 आएगा उसका डिवीजन, ये जो डिवीजन है वही होगा आंसर, मतलब वही होगा HCF। तो यहां पर 19 ऑप्शन में है शायद, यस ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,
सो नेक्स्ट नंबर 10, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इन फिगर द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ pf। तो नंबर ऑफ जीरोस है यहां पर 3 पॉइंट में कट किया है, तो डेफिनेटली 3 होगा आंसर, ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी होगा नंबर 10 का। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया हुआ है? 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। ओके, पैरेलल दिया हुआ है। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x minus 2y equal to 5. द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। ओके, तो सेकंड लाइन कौन सा होगा? ओके, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? 3x minus 2y equal to 5। अच्छा, आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, 3x 2y minus 5 equal to 0। अच्छा, ऐसे लिख भी सकते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि पैरेललिज्म, 2 लाइंस का पैरेललिज्म का कंडीशन क्या था? द कंडीशन इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो ये था हमारा कंडीशन। और ये a1 a2 ये सब क्या है? a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c1 जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसके साथ कोई x y नहीं है, वो c1 है। ओके, तो हमें देखते हैं कौन सा इक्वेशन में होगा ये। तो 3, देखो यहां पर 3 है, 3 बाई और यहां पर -2 है। अच्छा, ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। 9 दिया हुआ है, ओके 9 और यहां पर 8। तो देखो यहां पर 3/9 है और -2/8 है, ये सेम होगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, नॉट सेम, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी। अच्छा, ये 3 और -2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये गिवन इक्वेशन है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ये -12 और y के साथ -8। इस बार भी देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस रह जाएगा, तो इक्वल होगा प्लस माइनस? कभी भी नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, सी देखते हैं फटाफट। तो सी कैसा है? -12 और 8 ये दिया हुआ है, तो यहां पर ये बन गया -3 से कैंसिल करोगे तो ये 4 होगा, ये 1/4, तो -1/4। और इस तरफ भी 2 से आप डिवाइड करोगे ऐसे 1/4 ही रहेगा, तो -1/4। तो यहां भी -1/4, यहां भी -1/4, मतलब ये इक्वल है, ये होने का चांस है। और 7 है और इस तरफ -5 है, 5 है और 7 है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या हो गया? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो ऑप्शन सी हो गया। अगर ऑप्शन सी हो रहा है तो डी को देखने का कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 12, फटाफट देखते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है। नंबर 12, 3 vertices of a parallelogram ABCD are A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। You have to find the ordinate of the fourth vertex D। ordinate का मतलब होता है y coordinate। ओके, तो माइंड इट, ordinate। ओके, तो एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो A दिया हुआ है 1/4। ओके, एज यूजुअल स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके 1/4, ओके 1/4। बी दिया हुआ है -2 3, सी दिया हुआ है क्या 5 8, और डी निकालना है आपको। इसको मान लो xy, डी निकालना है आपको xy। ओके, तो यहां आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, हम जानते हैं। तो BC इक्वल टू AB या फिर AB इक्वल टू CD, ये कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बट दिस विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत आसान नहीं होगा इफ यू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा?
जो सेक्शन फॉर्मूला था ना, हाँ हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो वाला हम यहां पर अप्लाई करेंगे। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये बीसी सॉरी एसी का मिड पॉइंट और बीडी का भी मिड पॉइंट। ओके, अच्छा तो यहां कैसे निकालते हैं? बीडी, ओके यहां से निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं पहले एसी को अप्लाई करके। तो यहां से होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। वेरी सिंपल, x1 प्लस x2, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ये होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये था हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ओके, ये अप्लाई कर दो। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ओके, तो x1 प्लस x2 तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 तो ये 8 है और y2 है 4। तो ये ऐसे, ये होगा हमारा मिड पॉइंट। तो ये बन गया क्या? ये 6 होगा, तो ये 3 होगा, ये 12 होगा, तो ये 6 होगा। ओके, तो ये बन गया हमारा मिड पॉइंट 3,6। ओके, तो ये बन गया हमारा मिड पॉइंट 3,6। तो यहां से आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो आसानी से आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको ऑर्डिनेट चाहिए ना, तो डोंट वेस्ट टाइम बाय टेकिंग द x कोऑर्डिनेट, सिर्फ आपको y कोऑर्डिनेट लेना है। ओके, तो y ले लो और 3 ले लो। y प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये जो y कोऑर्डिनेट है, इसका और इसका मिड पॉइंट ये है 3,6। तो इस इक्वेशन में भी वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये y है और ये भी y, मतलब ये y1, ये y2, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाता है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो मतलब ये 6 होगा ना, तो ये बन गया 2 6 का 12 और ये y कोऑर्डिनेट 12 माइनस 3, इसको इस तरफ ले आओ 9। तो ऑप्शन ए में है यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्या है? नंबर 12, 13। नंबर 13 में क्या है? ट्रायंगल, ये दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है इसमें। अच्छा ऐसे ही करते हैं, 2 ट्रायंगल फटाफट ड्रॉ करते हैं। क्या दिया हुआ है? ABC। ओके, ABC और DEF, इज इट? यस, DEF। तो DEF। ओके, तो यहां पर F इक्वल टू C, कहां पर? O, F इक्वल टू C, F इक्वल टू C दिया हुआ है, और B इक्वल टू E, B इक्वल टू E दिया हुआ है। ओके, और AB इक्वल टू हाफ ऑफ DE। अच्छा, यहां से तो क्लियर है कि 2 एंगल इक्वल किया हुआ है, मतलब 2 एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, B का एंगल E इक्वल है और F का एंगल C। ओके, F एंड C इक्वल, B एंड E इक्वल। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी क्लियर है ये कि ये दोनों सिमिलर है। एक रिजल्ट मिल गया कि ये दोनों सिमिलर है। अब आते हैं थर्ड इंफॉर्मेशन। सो AB इक्वल टू हाफ ऑफ DE दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंट होता तब क्या होता? ये AB इक्वल टू तो AB इक्वल टू DE होता, AB इक्वल टू DE होता। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट नंबर 14।
करते हैं नंबर 14। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ओके, साइन ए इक्वल टू 7/25। ओके, आपको निकालना है cos C। ओके, तो राइट एंगल एट बी मतलब यहां पर B है, तो बाकी दोनों ए बी सी, ये A ये B हो गया तो ये C हो गया। ओके, और गिवन क्या है, साइन A इक्वल टू 7/25 ये दिया हुआ है, इट इज गिवन साइन A बाय, ओके, तो ये दिया हुआ है, तो हम अब निकालेंगे, यहां से निकालेंगे हम ये जो ये तीनों साइड्स AC AB BC निकालेंगे इसका वैल्यू। ओके, तो हम जानते हैं साइन A, तो अगर इसमें एंगल है तो साइन A का वैल्यू हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बनेगा BC बाय कौन सा AC इक्वल टू 7/25। तो मान लो BC इक्वल टू 7 के और AC इक्वल टू 25 के, ये मान लो इस BC इक्वल टू 7 के और AC इक्वल टू 25 के। ओके, तो यहां क्या मिलेगा, तो आपको निकालना है ये BC है और ऐसे आपको AB निकालना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो आपको निकालना है कौन सा, AB, तो AB² इक्वल टू AC² माइनस BC², तो ये बन जाएगा AC का वैल्यू है 25 के स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू है 7 के होल स्क्वायर, तो ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा 25 स्क्वायर 625 और ये आएगा 49 के स्क्वायर, है ना। तो 25 माइनस 49 कितना आएगा, ये आएगा कीमत ये 15 6 5 7 6, इज इट, आप लोग देख चेक कीजिए एक बार, यस, ओके, तो ये आ गया AB, तो AB² इक्वल टू 576 के स्क्वायर, ओके, तो अगर ये आ गया तो फिर AB का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर ये 576 के स्क्वायर, है ना। AB² का वैल्यू ये है, तो AB का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 24 के। ये मुझे याद है कि 24 का कितना है, 25 का कितना है, तो आप लोग ना प्रैक्टिस करते करते ये सब आपको आ जाएगा, अगर आप लोग ज्यादा करते हैं ना तो ये सब फटाफट आ जाएगा, और एग्जाम में इतना मतलब ऑप्शनल जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने वाला मैथ्स नहीं रहता है। ओके, तो ये मिल गया, तो हमें AB मिल गया, AC मिल गया, BC मिल गया, तो आप निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या था, कौन सा निकालना है क्वेश्चन में, साइन cos C, ओके cos C, तो cos C निकालना है, तो इस बार एंगल इस तरफ आएगा, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हम cos C जानते हैं क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाय AC, ये बेस या हाइपोटेन्यूज, तो BC का वैल्यू कितना है, कहां गया BC 7 के, और AC का वैल्यू कितना है, एक मिनट, ये AB का, हाँ यस, BC का वैल्यू 7 के और AC का वैल्यू, ओके, तो AC का वैल्यू आएगा 25, तो 7 बाय, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये निकालने का जरूरत ही नहीं है इसमें। ओके 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 ओके, ओके स्टूडेंट्स, यहां क्या हो गया, यहां पर तो मैंने देखा ही नहीं थी, ये तो AB निकालने का जरूरत ही नहीं है, साफ साफ ये निकलेगा कि cos C दिया हुआ है, तो cos C के लिए
ये एंगल यहां तक सिद्ध हो जाएगा, तो ये होगा बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो आपको चाहिए cos c, तो b by h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो दिया हुआ है BC, BC इज गिवन 7K और हाइपोटेन्यूज AC 25। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 7K by 25। ये सब जरूरी नहीं है एक्चुअली, हाँ मैंने खामखा ये कर दिया, ये सब जरूरी नहीं है, ये फटाफट ऐसे निकलेगा, हाँ BC by AC। तो यहां से 7 by 25 ये आएगा ऑप्शन। तो कहां है ऑप्शन? ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 15। The minute hand of a clock 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो मिनट हैंड है उसका लेंथ 84 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। The distance covered by the tip of minute hand from 10 am to 10:25 am। तो अगर if you consider a clock, ओके यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, ये 6, ये 3 ऐसा दिया हुआ है। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 मतलब 10, ये कहां पर होगा? ये यहां पर होगा, है ना। फिर 25 यहां पर होगा, ओके। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो मिनट हैंड है 15 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा? ये पूरे अगर ऐसे दिखा, ये क्लियर है ना, ये 12 है मान लो, ये 3 है, तो 12 से लेकर 3 तक कितना मिनट्स है? 15 मिनट्स। तो कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। तो हर 15 मिनट्स में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, रिमेंबर। तो 90 डिग्री एंगल है, तो फिर आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस को बार, ये कितना डिस्टेंस होगा ये निकालने को बोल रहे हैं, कितना डिस्टेंस। तो किसका है ये प्रॉब्लम? ये सर्कमफरेंस, ओके। तो ये डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सर्कमफरेंस और पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या था? एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये था फॉर्मूला, है ना। तो एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो 90 बाई 360, 2 पाई आर है तो 2 है, आई बाय 7 22 बाई 7 है, और आर इसका लेंथ 84, इज इट? कहा गया? हाँ 84। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4, ये 1, उसके बाद क्या कैंसिल होगा? कुछ कैंसिल होगा। इसके बाद यहाँ पर कितना होगा? ये 10 ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं। ये 12 है, तो फिर ये 2 है, और ये 11 है। तो यहां इसका मतलब 11 12 से 132 है ऑप्शन में, 132, यस ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। मार्कर सेंस करते हैं ये। ओके, नाउ नंबर 16, the probability that a drawn card from a pack of 52 cards is neither an as nor a span। इसका मतलब क्या होता है कि एक क्या है, पेक ऑफ कार्ड है, 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से आपको ड्रॉ करना है, और क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि नेदर एस नॉट स्पार्ट। तो स्पार्ट भी नहीं आना चाहिए और एस भी नहीं आना चाहिए। तो स्पार्ट का कितना है? हाउ मेनी स्पार्ट? 13 स्पार्ट, क्योंकि हर एक स्विच में 13 कार्ड होता है। तो हाउ मेनी स्विच? 4 स्विच। स्पार्ट
हार्ट, डायमंड, क्लब, ओके। तो स्पार्ट में यू हैव 13 कार्ड्स एंड एस कितना है, एस 4 है, लेकिन इसमें तो एक गया ना, बाकी कितना रह गया 3, है ना। सो टोटल कितना हो गया ये 16। तो ये 16 कार्ड नहीं आना चाहिए, ये 16 कार्ड नहीं आना चाहिए। तो आपका रह गया कितना, ये कितना रह गया सॉरी, ये रह जाएगा 36 ओके 36। तो ये ऑप्शन में है क्या 36/52, ओके वो कैंसिल जाएगा ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 36 है ना, ये होगा हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, और टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है 52 है। तो 36 और 52 और डिवाइड कर दो, डिवाइड जाएगा किससे, 4 से डिवाइड होगा ना। तो ये कितना होगा 4 9 36, 4 13 52। तो आंसर विल बी 9/13। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके देन नंबर 17, number 17, 3 alarm clocks rising their alarms at regular interval of 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. Okay, if they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? ये क्वेश्चन है। तो 3 बेल है ना, नहीं क्लॉक है, ओके कोई बात नहीं, क्लॉक है 20 मिनट, 25 मिनट और कितना 30 मिनट। तो यह होता है इन तीनों क्लॉक का इंटरवल, मतलब ये 20 मिनट्स में रिंग करता है, ये 25 मिनट्स के बाद रिंग करता है, हाँ ये हर एक 30 मिनट्स के बाद रिंग करता है। तो आपको निकालना होगा कि ये एक साथ कब रिंग करेंगे, ओके फर्स्ट। तो वेरी सिंपल, इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम से निकालते हैं, तो किससे करोगे 2 से, ओके 10 25 ये 15, ओके फिर ये 2 से, और 2 से नहीं करते ना 5 से करते हैं, ओके 5 2 5 3, ओके और तो नहीं जाएगा ये 2 5 10, 2 5 10, 10 into 10 100, 100 into 3 300। तो 300 आ गया हमारा एलसीएम। तो 300 मिनट्स के बाद, 300 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 300 मिनट्स का मतलब होता है 5 आवर्स। तो 5 आवर्स, तो ये 5 आवर्स, तो 5 घंटे बाद एक साथ रिंग करेंगे। तो अगर 12 नून में एक साथ रिंग कर रहा है तो 5 घंटे के बाद कितना होगा 5 PM। तो ये 5 बजे 5 PM में रिंग करेगा। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट नंबर 18, ओहो कहाँ गया ऑप्शन नंबर नंबर 18, ओके नंबर 18 क्या है नंबर 18, a quadratic polynomial the product and sum of whose zeros are 5 and 8। ओके प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, ओके प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कहाँ गया प्रोडक्ट 5, ओके 5 और सम दिया हुआ है ये 8, ओके यस। तो आपको निकालना है इनमें से कौन से इसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन मतलब नहीं पॉलिनोमियल होगा, ओके। तो हम जानते हैं कि जो सम एंड प्रोडक्ट, इफ यू आर गिवन सम एंड प्रोडक्ट द पॉलिनोमियल विल बी लाइक दिस, ये सम ऑफ द जीरोस into x, okay plus product of the zeros, product of the zeros। तो यहां से क्या आएगा, ये x स्क्वायर, ये सम कितना है 8 और प्रोडक्ट कितना है 5, तो ये आएगा। और आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना मर्जी आप k का वैल्यू आप
मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, इज एनी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 एनी कांस्टेंट। ओके, तो ऑप्शन विल बी ए। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन था ये सब, और आसान सा क्वेश्चन है। फटाफट 19 पर जाते हैं। 19 पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर दिस। ओके, तो फिर ये अच्छा, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल, ये ए मान लो, ये बी मान लो। कितना दिया हुआ है? ए -1, y -1, y एंड बी दिया हुआ है 5, 7 एंड o is given what? o is given 2 - 3y। ओके, अच्छा, आपको निकालना है वैल्यू, y का वैल्यू। तो फिर ओके, यहां से क्या आएगा? y का वैल्यू है ना। ओके, तो ये देखो, तो अच्छा, इसको इस तरफ लिखते हैं 2, -3y। 2 है ना, 2, -3y। यस, तो ये रेडियस, तो सर्कल का रेडियस क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये भी, ये दोनों इक्वल है। मान लो ये O, सेंटर इज O, तो OA इज इक्वल टू OB बिकॉज दे आर रेडियाई। ओके, तो OA अप्लाई अ डिस्टेंस फार्मूला, तो ये x1 y1, ये x2 y2 है ना। तो कितना होगा? इफ यू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस -3y -7 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। ओके, और इस तरफ OB, तो OB ये है 2 - -1 प्लस -3y -y। ओ सॉरी, वो ए लिख दिया ना मैंने, 3 माइनस, ओ सॉरी, ओ ये था। हाँ कोई बात नहीं, सेम ही होगा, ये सेम ही होगा, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक मिनट, ये 2 - 5 प्लस -3y माइनस, ओके। एक्चुअली एग्जाम में इतना लिखने का टाइम नहीं है, ये सब स्क्वायर रूट ये सब मत देना, ये रिमूव कर देना। ओके, फटाफट ये ब्रैकेट वगैरह लगा के, है ना। ये 2 - 5 -3, ये 9 लिखता हूं मैं, है ना। इसको क्या कैसे लिखूं इसको? 3y + 7, क्योंकि माइनस को भी रिमूव कर दिया यहां से, है ना। स्क्वायर है 2, ये 3 होगा, ये भी 9 होगा, प्लस यहां से भी रिमूव करते हैं माइनस को, तो ये आएगा। इज इट ओके? तो 9 कैंसिल, यहां से क्या आएगा? 3y + 7 होल स्क्वायर, तो इसको a + b होल स्क्वायर में फॉर्मूला, तो 9y² + 49 प्लस 2ab, 2 × 3y × 7 कितना होगा? 2 × 3 × 7 42, और इस तरफ 3y + y 4y होल स्क्वायर 16y²। ओके, तो यहां पर 16y² है। इस पूरे इसको इस तरफ ले जाओ, अगर इस तरफ ले जाओगे तो ये -9y² यहां पर आ जाएगा ना, -9y² -49 -42, तो कितना मिलेगा? ये 7y² -42y -49 ये मिलेगा ना। इसको पूरे इसको इस तरफ ले जाओगे तो, है ना। तो देखो यहां पर कितना हुआ है, ये हुआ है। अच्छा, मैं इसको रिमूव करता हूं, तो 7y² -42y -49, तो साफ साफ है, 7 से डिवाइड कर सकते हो। तो 7 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? y² मिलेगा, यहां पर 6 रह जाएगा, 6y, और ये 7।
फिर इसको फैक्टराइज करो। कैसे करोगे फैक्टराइज? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये क्या है? -6y है, तो ये होगा y माइनस 7, है ना? ये तो आप लोग क्लास 8 में ही जानते हैं, हाँ, फ्रॉम द क्लास 8। तो इन दोनों से हम लेंगे तो ये y प्लस 1 आ जाएगा, और यहां से -7 लेंगे, y प्लस 1 आ जाएगा, है ना? तो ये दो फैक्टर बन गया, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक का वैल्यू आएगा -1, एक का वैल्यू आएगा 7, तो दो वैल्यू आएगा ना y का, -7 और 7। तो ऑप्शन में है क्या -1 एंड 7? कहाँ गया? यस, ऑप्शन बी, -1 एंड 7। ये हो जाए। ओके, अच्छा, okay, now let's go for the next question, 20. Okay, so 20, you are given that sec theta equal to √2, sec theta equal to √2 ये given है, and you have to find the value of 1 plus tan theta by what? Sin theta. Okay, this is a question, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ओके, क्या करते हैं? देखिए, यहां से तो कुछ नहीं निकल रहा है, 1 प्लस tan थीटा बाई sin थीटा। अगर इसको tan थीटा को अगर कन्वर्ट करेंगे, हाँ, sin बाई cos में, तब भी ये कुछ नहीं निकलेगा। ओके, सो इफ यू फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा सेपरेटली, ओके, सो यहां से हम क्या करेंगे? अच्छा देखिए, sec थीटा इक्वल टू √2, इसका मतलब sec थीटा का वैल्यू क्या है? h बाई बी, h बाई बी, तो ये बनेगा √2 h बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो फिर यहां हाइपोटेन्यूज बाई बेस इक्वल टू √2 बाई 1 ऐसे करते हैं। ओके, तो लेट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू √2 के और बीटा बेस इक्वल टू के, ऐसा होगा। तो अगर हाइपोटेन्यूज बेस मिल गया तो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहां से हमको निकालना है क्या? p निकालना है ना, तो p निकलेगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? तो h स्क्वायर का वैल्यू कितना है? h स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2k स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 2k स्क्वायर। और ये कितना है? ये b है ना, ओके, b क्या है? कहां कहां? ये k स्क्वायर, तो ये मिलेगा हमको k स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना हो गया? तो p का वैल्यू आएगा हमारा k। तो b मिल गया, p मिल गया, h का सब तो है ना। तो अब निकालो tan थीटा और sin थीटा। तो tan थीटा sin थीटा क्या आएगा? p बाई h। तो p का वैल्यू कितना है? k, और h का वैल्यू कितना है? √2k। तो ये आएगा 1√2, ये आएगा। tan थीटा कितना है? b बाई p, सॉरी p बाई b। तो ये आएगा, p का वैल्यू है कहां? p का वैल्यू k और b का वैल्यू k, ये 1 आ गया। तो sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब निकालो फटाफट, क्या है? 1 प्लस, तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस tan थीटा। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, कहां गया? हाँ, sin थीटा, 1√2। तो ये आएगा 2 बाई √2, ऐसा। तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2√2, है ना, 1/√2 sin थीटा। ओके, p का वैल्यू, ओके, तो देखते हैं ऑप्शन। 2√2, यस, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके।